Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the topic about the overview of the financial institutions. Today we are going to study that why do financial institutions exist. Before starting this lecture, I am going to recall the previous lecture. In this course, we started from an overview of the financial system. As you all know that financial system is comprised financial system is comprised of financial institutions as well as financial markets. In the previous lecture, we discussed about the financial markets. We discussed that how financial markets are important. Then we discussed the structure of financial markets. Then we discussed internationalization of financial markets. Then we are going to study the interest rates. We studied that how interest rate changes, why interest rate is the most important variable in the economy. All these topics are discussed with perspective to the financial markets. As I'm going to recall the previous lecture, that is the financial markets efficient? In that lecture, we first of all we studied that the efficient market hypothesis theory, that is known as EMH theory, that was developed by Eugene Fama in 1970. We studied the basic definitions that why the markets are informationally efficient. Then we discussed three basic types of market efficiency, that is strong form of efficiency, semi-strong form of efficiency, and weak form of efficiency. In strong efficiency means that you are able to get the inside information, and that is impossible to get in most cases. We also studied that in US it is considered illegal, not in the other countries, but mostly it is considered as an illegal information. Then we discussed that semi-strong form of efficiency, in which you are going to view the information of publicly traded companies. And in weak form of efficiency means that over the past information, you are going to anticipate your future prices. That's why this is called a weak form of efficiency. Then we discussed that how the behaviorists in behavioral finance researchers don't agree with the EMH theory. Till 1990, EMH theory is considered the most popular theory. But after 1990, many researchers like Paul make researches in the field of behavioral finance, and according to that researchers, they thought that there are other factors that are human psychology, cognitive factors, framing facts, and heuristics that also affect the market efficiency. While discussing the concept of behavioral finance, I discussed about the different biases, that is overconfidence, representativeness, cognitive biases. Sometimes you are very much overconfident and you make a wrong decision. Or in that we discussed various anomalies like winner-loser effect. In the previous lecture, I examined that why the marketers who are performing in the market for the 3 years are going to be the losers for the next 3 years. All these factors are discussed in the previous lecture. Now I am going to discuss the second part of your course, financial institutions. That is, why do financial institutions exist? जिस तरह हमने फाइनेंशियल मार्केट्स को देखा था, उसकी डिफरेंट चीजें देखी, उसमें हमने स्ट्रक्चर, जितने भी कंपोनेंट्स देखे थे, सेम इन द केस हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे. अब आप सबको पता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट ही अपने प्रीवियस लेक्चर से किया था. और एक और बात कि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, दीज आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. तो माइट पॉसिबल भी अब जो चीजें आपने मार्केट्स में पढ़ी थी वही इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, क्योंकि ये सारे बेसिकली जो पर्पस है वो यही है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स. तो इंस्टीट्यूशंस में आप देखते हैं कि आपकी इंटरमीडियरीज आती हैं. बेसिकली इंस्टीट्यूशंस आर द प्लेसेस विच इम्पार्ट फाइनेंशियल नॉलेज टू द पीपल. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंसिस्टेड ऑफ बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स.
Before starting the today's lecture, I am going to give you a very brief overview of the chapter, that what we discussed today. As you all know that a vibrant economy requires a financial system that moves funds from savers to borrowers. We discussed in the previous lecture that financial institutions are playing a major role in transferring of funds that enables the people who to transfer the funds from the people who don't have a productive use of them to those people who have a productive use of them. अब आप देखें जब फंड्स ट्रांसफर होंगे तो उसका जाहिर है ओवरऑल इम्पैक्ट तो होगा, क्योंकि आपने कहा है कि आप वहां से फंड्स ट्रांसफर करेंगे जहां पे जिन लोगों के पास प्रोडक्टिव यूज नहीं है, टू दोज पीपल हु हैव अ प्रोडक्टिव यूज. इसलिए कि देखें आप कुछ आपके पास सेविंग्स हैं लेकिन आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्टिव आइडिया नहीं है, यू आर नॉट इन द पोजीशन टू स्टार्ट एनी बिजनेस, और आपके पास कोई ऐसी इनोवेटिव या क्रिएटिविटी नहीं है कि आप ला सकें. आप सिंपल ये करते हैं कि आप चाहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए, आप उसे बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं. देन अब जो कंपनी है या कोई बॉरोअर है जिसके पास बहुत प्रोडक्टिव आइडिया है या वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर रहा है या एक्सपेंड कर रहा है, तो वो कंपनीज क्या करेंगी एट सम कॉस्ट, जिसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं, वो बैंक से बोरो करेंगी और उस पैसे को यूटिलाइज करेंगी. तो उसको देखिए आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका इम्पैक्ट देखें आप, फिर वो क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी पे उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एनहांस हो जाएगी, हर चीज मतलब देखिए विदाउट एनी पर्पस तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करे. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. दैट्स व्हाई इकोनॉमी रिक्वायर्स अ गुड फाइनेंशियल सिस्टम. In this chapter, we took a closer look at why financial institutions exist and how they promote economic efficiency. The basic topics include basic facts about the financial structure throughout the world, transaction costs, asymmetric information, adverse selection and moral hazards. You all people are very much aware of these terms because we discussed transaction costs, asymmetric information, both adverse selection and moral hazard with perspective to financial markets. Today I am going to discuss these terminologies with perspective to financial institutions. Then Lemon problem, how adverse selection influences financial structure. Then how moral hazard affects the choice between the debt and the equity contracts. How moral hazard influences financial structure in debt markets, and then conflicts of interests. ये तो आपका प्रीव्यू था कि आज हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे. लेट्स मूविंग द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक फैक्ट्स अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड. Financial system is a complex structure including many different financial institutions, banks, insurance companies, mutual funds, stocks and bond markets. ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में अपने फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आई थिंक अब इससे ज्यादा आपको डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा, जितना बेसिक नॉलेज था या आपको इस टर्म से अवेयरनेस है. अब देखिए हम अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखेंगे अभी आपको नेक्स्ट जो वेरी नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो आपकी नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है वो कैसे आप फंडिंग, उनकी फंडिंग का क्या है. जाहिर है जो भी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं से तो फंडिंग ले रहे हैं, लाइक यूएस, जर्मनी, जापान एंड कनाडा. वो किस तरह अपनी एक्सटर्नल फंडिंग लेते हैं, उनका क्या एस्पेक्ट्स है, क्या वो कंट्रीज जो हैं अपनी एक्सटर्नल फंडिंग को जाती हैं या डायरेक्ट फाइनेंसिंग में जाती हैं या इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग में जाती हैं. जो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको चार्ट नजर आएगा वो आपको क्लियर करेगा इनका डिफरेंस. अब देखें नेक्स्ट जो ये चार्ट ये डिपिक्ट कर रहा है कि सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल फाइनेंस के, आप देखिए डिफरेंट कंट्रीज हैं. येलो कलर जो आपको बार चार्ट में नजर आ रहा है वो डिपिक्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी को. ऑरेंज कलर डिपिक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द जर्मनी, पर्पल डिपिक्ट्स जापान, ग्रीन इंडिकेट्स कनाडा. देखिए आप ये बता रहे हैं कि आप जो बेसिकली ये चार्ट है ये फिगर आपको ये बता रहा है कि सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फंड्स फॉर नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, अ कंपैरिजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद जर्मनी, जापान एंड कनाडा.
क्योंकि आप देखें जब भी आप मार्केट्स की हमने बात की थी, हमने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है एक 1980s तक अपनी मार्केट को डोमिनेट करता रहा है। देन आफ्टर अब जापान इज द लीडिंग मार्केट, जर्मनी, जापान, तो ये 4-5 जो मेजर कंट्रीज हैं उनका कंपैरिजन देख रहे हैं। अगर हम बैंक लोन्स को देखें तो अमेरिका का जो रेशियो नजर आ रही है दैट इज ओनली 18%। इससे ये पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो बैंक लोन्स को प्रेफर नहीं करते, बल्कि वो नॉन बैंक लोन्स को ज्यादा प्रेफर करें। अगर आप बैंक लोन्स, नॉन बैंक लोन्स, बॉन्ड्स और स्टॉक्स में येलो कलर को जहां जहां शो हो रहा है बार चार्ट में, वो आपको ये बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो फंडिंग है पैटर्न वो क्या है। सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स नॉन बैंक लोन्स को प्रेफर कर रहे हैं, देन बॉन्ड्स को, देन बैंक लोन्स को, और 11 सिर्फ जो बिल्कुल सबसे माइनर सा जो पोर्शन 11% को स्टॉक फाइनेंसिंग की तरफ जाता है। अगर हम जर्मनी को देखें और जापान को देखें तो जापान और जर्मनी का ऑलमोस्ट सेम रेशियो है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये दोनों जो प्रेफर कर रहे हैं वो बैंक लोन्स को कर रहे हैं, यानी दे आर दीज इकोनॉमीज आर गोइंग टू प्रेफर टू गेट फंडिंग फ्रॉम द बैंक्स एज कंपेयर टू नॉन बैंक लोन्स, बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। ये क्यों होता है? ये आपको जो चार्ट दिखाया गया है ये 1970 से लेके 2000 तक के दरमियान में ये कंट्रीज का सिनेरियो रहा है। ये उस सिनेरियो को बता रहा है। देखिए वो इसलिए कि हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी है, उसकी कुछ कंडीशंस है। देखिए बैंक लोन्स अब क्यों अमेरिका क्यों नहीं ले रहा है? वाई जापान हैज अ ग्रेटर रेशियो देन अमेरिका? क्योंकि उनकी अपनी कंट्री की इकोनॉमी है। अब आप देखें जापान और जर्मनी तो आजकल सबसे ज्यादा लीडिंग इकोनॉमीज हैं, उनकी लीडिंग मार्केट्स हैं। दैट्स व्हाई दे प्रेफर टू गेट लोन्स ऑन द बैंक लोन्स। इट मीन्स ये बता रहा है कि जो जापान है या वो बैंक लोन्स को प्रेफर कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं। अब जब हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देयर आर 8 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। जो आप किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये 8 फैक्ट्स उसमें आ रहे होंगे। नंबर 1, स्टॉक्स आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर आवर बिजनेसेस। देखें अब हम मूविंग टू द प्रीवियस स्लाइड, क्योंकि जो ये इसमें ये बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपके जो स्टॉक्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। स्टॉक्स को क्यों कहा गया है? क्योंकि मीडिया की बहुत अटेंशन होती है। आप जब भी अपने टीवी में बिजनेस न्यूज में सुने तो हमेशा स्टॉक्स के बारे में बताया जा रहा होता है। तो जब मीडिया बहुत ज्यादा फोकस्ड करता है तो नॉर्मल पीपल दे आर अ व्यू दैट कि जो स्टॉक्स है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम प्रीवियस स्लाइड में देखें, आप स्टॉक के पोर्शन को देखें तो तमाम कंट्रीज का लीस्ट पोर्शन है। अब यूनाइटेड स्टेट्स को सिर्फ 11% स्टॉक फंडिंग कर रहा है, जर्मनी 8% कर रहा है, जापान 5% कर रहा है और कनाडा 12%। तो दैट डिपिक्ट्स दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट स्टॉक इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था। Second, issuing marketable debt and equity securities is not the primary way in which businesses finance their operations. Second में ये कि जरूरी नहीं है कि आप मार्केटेबल डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज की तरफ जाएं। जब आपने किसी भी बिजनेस को अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए फंडिंग की जरूरत है तो वो अदर देन मार्केटेबल डेट और इक्विटी होगा। वो भी आप देख चुके हैं कि बैंक्स की तरफ ज्यादा, सबसे ज्यादा जो जर्मनी और जापान को देखें तो वो प्रेफर कर रहे हैं बैंक लोन्स की तरफ एज कंपेयर टू मार्केटेबल डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज। थर्ड पॉइंट, इनडायरेक्ट फाइनेंस। इनडायरेक्ट फाइनेंस हमने अपने फ्लो चार्ट में फर्स्ट लेक्चर में जब आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया था, देन हमने फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस करते हुए दिखाया था। उसमें हमने बताया था कि इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग होती है फाइनेंसिंग दैट इन विच इंटरमीडियरीज आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन द बायर एंड सेलर और बोरोअर और लेंडर। इनडायरेक्ट फाइनेंस में वो तमाम एक्टिविटीज आती हैं जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की होती हैं। और अगर आप इसको देखें, हमने कंपैरिजन भी देखा था, हमने कहा था कि इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग जो है वो थोड़ी कॉस्टली एज कंपेयर टू डायरेक्ट फाइनेंसिंग, बट एक हम कन्वीनियंट है। उसके बाद हमने रिस्क फैक्टर देखा था कि डायरेक्ट फाइनेंसिंग में रिस्क फैक्टर ज्यादा है, लेकिन इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च की और इस चीज को प्रूव किया कि इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन डायरेक्ट फाइनेंसिंग, in which businesses raise funds directly from lenders in the financial markets. ये वो है डायरेक्ट फाइनेंसिंग जिसमें बिजनेसेस डायरेक्टली फंड्स ले लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, लेकिन इनडायरेक्ट फाइनेंस में विद द हेल्प ऑफ द इंटरमीडिएट्स
उसमें आपके बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल मेकिंग अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द लैंडर एंड द बोरोवर. नेक्स्ट, financial intermediaries, particularly banks, are the most important source of external funds used to finance businesses. वो भी आपको ऑलरेडी आपका ये चार्ट जो हमने देखा था, फ्लो चार्ट, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि बैंक्स आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल. One of the most important financial intermediaries the bank, because आप देखिए सेंट्रल बैंक्स वगैरह को, उनके सबसे ज्यादा जो बैंक है वो लोगों, क्योंकि बैंक जो पर्पस हो रहा होता है उसका डिपॉजिटरी एंड यानी बोरोइंग एंड लैंडिंग फंक्शन प्ले कर रहा होता है. और क्योंकि आप बोरर और लैंडर के लिए मतलब बैंक्स में जाएंगे, वो इजीली इन्फॉर्मेशन, अब देखिए इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह वो भी विद द हेल्प ऑफ बैंक ही काम कर रही हैं. दैट्स व्हाई बैंक्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग. Next, financial system is among the most heavily regulated sector of the economy. मतलब कि फाइनेंशियल सिस्टम को प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमने देखी थी, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सिस्टम प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हो रहा होगा तो उसकी जो वर्किंग है उसकी एफिशिएंसी वो इफेक्ट करी होगी. वो बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट द रेगुलेशंस. Only large, well-established corporations have easy access to securities market to finance their activities. अब देखिए इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि only well-established corporations जो हैं, देखिए आप जो आपकी वेल एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेशंस होंगी उन्हीं को देखिए, उनकी क्योंकि वो लार्ज कंपनीज हैं, एक तो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, वेल रिप्यूटेड फर्म्स हैं. आप देखें जब भी आप फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं तो आपको देखा जाता है कि क्या आप ये जो हम बोरो कर रहे हैं क्या आप इस कंडीशन में हैं कि लैंडर को ये अमाउंट आप वापस करेंगे. अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, तो आई थिंक यू माइट गेट डिफिकल्टी इन गेटिंग द फंड्स. नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म यूज होगी, पहले मैं आपको पॉइंट 7 बताती हूँ, देन हम इस टर्म को डिस्कस करेंगे. कोलेटरल इज अ प्रिवेलेंट फ्यूचर ऑफ द डेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेसेस. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कोलेटरल. कोलेटरल किसे कहते हैं? बेसिकली मॉर्गेज की तरह होता है कि देखिए आपका कोलेटरल कहते हैं सिक्योर्ड डेट को, यानी आप बोरोवर लेंडर हैं. लेट्स सपोज दैट एक दो लोग हैं, एक्स एंड वाई हैं, और वो चाह रहे हैं कि हम एक ट्रांजेक्शन करें. अब एक्स जो है, एक्स इज प्लेइंग अ रोल ऑफ द लेंडर while y is playing a role of the borrower. अब y को पैसों की जरूरत है, वो चाह रहा है कि मैं 100,000 जो है x से बोरो करूं. अब x भी विलिंग है देने के लिए. उनके दरमियान में मेच्योरिटी पीरियड भी डिफाइन हो जाता है कि 1 ईयर में हम, ये स्पेसिफाइड पीरियड है, हम y एग्री करता है कि मैं आपको पेमेंट वापस कर दूंगा, और इंटरेस्ट रेट वगैरह. लेकिन x के पास क्या गारंटी होगी? क्या x कैसे ये अश्योर करेगा कि y जो है इस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे मुझे ये पैसे वापस कर देगा? माइट पॉसिबल भी रिस्क है, डिफॉल्ट भी हो सकता है, क्रेडिट रिस्क डिफॉल्ट है इसके अंदर. तो कोलेटरल कहते हैं कि आप अपनी कोई चीज प्लेज कर लेते हो, एज अ प्लेज लिखवा लेते हो. आप कहते हो कि 100,000 है तो मेरा ये कोई प्लॉट के पेपर्स हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, ये आप अपने पास रख लो. आप जिसे आप कहते हैं गिरवी रखवाना, एज अ मॉर्गेज आप अपने पास रख लो, और या कोई गाड़ी या कोई आपका कोई एसेट वगैरह है, और मैं आपको, फिर इससे ये होगा कि आप सिक्योर्ड हो जाओगे, एक्स भी सिक्योर्ड हो जाएगा. वो बहुत ज्यादा उसके लिए ईजी हो जाएगा कि वो डिसीजन कर लेगा कि मैंने वाई को पेमेंट देनी है कि नहीं देनी है. दो तरह के लोन्स होते हैं, सिक्योर्ड डेट्स एंड अनसिक्योर्ड डेट्स. अनसिक्योर्ड ऐसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो अनसिक्योर्ड होते हैं, उसमें आपने कोई भी चीज कोलेटरल नहीं लिखवाई हुई होती है. ठीक है, उसके बाद अब कोलेटरल इज अ प्रिविलेंट फीचर ऑफ द डेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेसेस. देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो कोलेटरल का है, क्योंकि आप देखिए आप हाउस होल्ड्स में या बिजनेसेस कर रहे हैं तो आप कैसे, आप बगैर गारंटी के तो किसी को कुछ नहीं देंगे. आप इवन बैंक में जाते हैं, आप बोरो करते हैं, तो ये तो नहीं होता कि बगैर आप किसी चीज को, जब आपकी, और देखिए जैसे जैसे आपकी अमाउंट एक्सीड करती जाएगी तो आपको मतलब कोई ऐसी चीज, कोई एसेट कुछ रखवाना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू गेट दैट फंड्स. Debt contracts are typically extremely complicated legal documents that place substantial restrictions on the behavior of borrowers. देखिए आपको लीगल, आप देखिए कोई भी चीज है, कोई भी ट्रांजैक्शन आपने करनी है तो उसकी लीगल वैल्यू क्या है. अब डेट कॉन्ट्रैक्ट्स वही जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें कॉम्प्लिकेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं
जो आपके बिहेवियर ऑफ बोरर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह नहीं है, तो माइट पॉसिबल भी कि आपका डिफॉल्ट रिस्क हो जाए। ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से जो हमने 8 फैक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए। यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, हम इनका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है, हाउ दे हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। तो आप देखिए, हमारे सबसे पहला इम्पैक्ट क्या है, सेविंग मोबिलाइजेशन, कि अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको सेविंग मोबिलाइज कर रहा है, यानी आप लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। देखिए, जो आप हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, जब लेंडर अपने डिपॉजिट्स या अपने कुछ कैश बैंक में लेके जाता है, तो बैंक उसको इंटरेस्ट रेट कुछ मार्कअप देता है, जो उसके लिए प्रॉफिट होता है। तो आप देखिए इनकरेज हो रहे हैं, यू आर मोटिवेटेड टू गेट समथिंग, यानी ये नहीं कि आपके पास आज 1000 रुपीज है तो वो कल भी 1000 ही पड़े रहे, यानी आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए आपकी नेशनल ग्रोथ पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अब आपने अपने पैसे डिपॉजिट करा दिए बैंक में, अब कोई बोरर वगैरह है, कोई कॉर्पोरेशन है, कोई कंपनी है, या कोई ऐसा शख्स जिसके पास कोई प्रोडक्टिव आइडिया है और वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा है, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो इट मीन्स कि हमारी इकोनॉमी में अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी नेचुरल ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, एनहांस्ड हो रही है। देन सेम इन द केस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि आप देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, आपकी जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स दैट टुक प्लेस इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव अ वेरी मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरप्रेन्योरल ग्रोथ आप देखें, तो ऑल द वे जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपकी इकोनॉमी को एनहांस कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी की को इम्प्रूव कर रहे हैं। दैट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप ऑन द इकोनॉमी। अगर हम देखें कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट मींस दैट इट हैज अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। और आपको देखिए, जैसे पाकिस्तान इज डेवलपिंग कंट्री, अब अपने डेवलप फेज में जाना है, तो विदाउट द इम्प्रूविंग योर इकोनॉमी यू आर नॉट इन द पोजीशन टू गो टू द डेवलप फेज, जब तक आपकी मार्केट्स, आपके इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करेंगे। ये तो हमने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स के 8 पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने बताया कि स्टॉक्स, जरूरी नहीं है कि स्टॉक्स जो है वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर किया जाए। देन सेकंड पॉइंट था हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में था। फिर हमने ये डिस्कस किया कि बैंक्स को जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। फिर हमने ये देखा कि फाइनेंशियल सिस्टम हैव सम रेगुलेशंस। फिर आप देखेंगे वेल रिप्यूटेड जो फर्म्स हैं उनको वो ज्यादा बेहतर कंडीशन में बोरो करने के लिए। फिर हमने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फाइनेंसिंग में देखा कि इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग इज बेटर ऑप्शन देन एज कंपेयर टू डायरेक्ट फाइनेंसिंग। देन हमने कोलेट्रल की बात की। जब कोलेट्रल की बात की तो हमने सिक्योर्ड डेट और अनसिक्योर्ड डेट की बात की। हमने देखा कि कैसे सिक्योर्ड डेट क्या होता है और अनसिक्योर्ड डेट क्या होता है, और आखिर में हमने डेट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, देखिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन बेसिकली किसे कहते हैं कि आप बायर एंड सेलर है, मार्केट में जाते हैं, वो दोनों आपस में, अब एक बायर है एक सेलर है। बायर है कि आप मार्केट जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे आई एम द नीड ऑफ परचेजिंग अ कंप्यूटर, आपको सेल करता है, तो वहां पे एक ट्रांजैक्शन हो रही होती है। देखिए हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्फ्लुएंस होती है। आप विदाउट incurring any cost, transaction cost, you are not able to make any transaction। देखिए अब आप सबसे सिंपल एग्जांपल देखें कि जब मैंने आपसे कहा कि आपने कंप्यूटर परचेज करना है या यू आर गोइंग टू परचेज अ बुक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो आप क्या करेंगे? आप बुक लेने के लिए मार्केट में जाएंगे, लेकिन मार्केट तक जाने के लिए यू हैव टू इनकर द कॉस्ट, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। माइट पॉसिबल भी आप एक मार्केट जाते हैं, वहां पे आपको उसका एडिशन नहीं मिलता, आप दूसरी मार्केट जाते हैं, तो वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी ना। आप या ये भी आपका टाइम देख लें, आपकी एनर्जी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। लेकिन आप देखें, अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, एक कंसेप्ट को अगर हम इस तरह देखें कि आप, एक तो ये कि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, लेकिन आप उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। वो कैसे? देखें, आप 4-5 फ्रेंड्स हैं, आप ग्रुप बना लेते हो और एक साथ चले जाते हो, और जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको डिवाइड कर लेते हो। तब आपने पूल बनाया, 3 से 4 या 5 लोग एक साथ के, या एक ही पर्सन उनके बिहाफ पे जाके उनके लिए बुक्स ले आए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिवाइड कर लिया, तो देखिए यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमाइज्ड हो गई है।
देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी। हमने कहा था कि अगर आप एक रिस्की एसेट में इन्वॉल्व हैं और बजाय इसके आप इसको डाइवर्सिफाई कर लेते हो, उसको कंपोनेंट्स में 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो, तो जरूरी नहीं है ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको ए प्रोजेक्ट जो है वो लॉस आपको बेयर करते हैं तो जरूरी नहीं कि बी से भी आप लॉस बेयर करें। लेकिन अगर आपने तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट एक जगह पे पुट अप की भी होगी तो वो तो आपको ज़ाहिर श्योर है अगर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। इसी तरह आप अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल देती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स वगैरह से कोट सिंपल एग्जांपल्स जो हमारी डेली लाइफ से हैं, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे लेक्चर और आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इसमें यह है कि आप देखें, आप लोग एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक शॉप वगैरह लेते हो। अगर आप पर्टिकुलर हो जाओगे कि बस मैंने जो है ना लाइक सिर्फ और सिर्फ जो है बेकरी आइटम्स करने हैं, लेकिन आप बेकरी वगैरह बना रहे हो, लेकिन बेकरी के साथ आप जनरल स्टोर बना लेते हो, तो आप देखें आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। क्योंकि आपने जो रेंट वगैरह पे किया उसी प्लेस में, उसी लोकेशन में आप अपने बिजनेस को एनहांस कर रहे हो, उन्हें डाइवर्सिफाई कर रहे हो। फिर मैं आपको बताती हूँ इसी तरह कि लेट्स सपोज दैट कि आपके पास 5,000 रुपीज है और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप शेयर्स परचेज करते हो। देखिए आप जब शेयर्स परचेज करेंगे 5,000 के, तो देखिए बहुत मिनिमल सी अमाउंट है, आपको ब्रोकर्स फी कमीशन वगैरह, ब्रोकर्स कमीशन वगैरह पे करना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक भी करते हो तो अगर आप क्या करते हो कि आप लोग 10 लोग हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट ईच पर्सन हैव 50,000 इन्वेस्टमेंट, वो उसको कंबाइन कर लेता है अपनी इन्वेस्टमेंट को, देन वो करेगा तो वो बेटर पोजीशन में है कि वो, क्योंकि उसने अब वहां पे आपके पास टोटल जो अमाउंट है वो 500,000 है। अब आप इस पोजीशन में है कि आप क्या परचेज करें, तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज्ड हो जाएगी। अब देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम फैक्टर देखें ब्रीफली, हम इसको अगर समराइज करना चाहें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैन हिंडर फ्लो ऑफ फंड्स टू पीपल विद प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सिर्फ क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करना पड़ी है, दैट्स ओनली इज अ मेजर ऑब्स्टेकल इन फ्लोइंग ऑफ फंड्स। ये तो था ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ तरीके हैं जिससे हम अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मेक प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इट मीन्स कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मिनिमाइजिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। फिर आप देखें इसमें हम 3 चीजों को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हमने बात की थी कि लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात की थी। जिस तरह आप इकोनॉमिक्स में भी इस कंसेप्ट को सुनते हो, पढ़ते आए हैं, इसी तरह मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप 10 लोग कर लेते हो। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है दैट बेस्ट डिपिक्ट्स दैट हाउ यू आर एबल टू रिड्यूस योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। Then develop expertise to lower transaction costs. देखिए आप एक्सपर्टीज, जैसे आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात कर लें, अब आप टोल फ्री नंबर वगैरह रख लेते हैं। अब आपने जैसे अपनी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी तो दैट ऑल्सो enables you to reduce your transaction costs. फिर लिक्विडिटी की देख लें कि लिक्विडिटी तो आपको पता है कि अगर आपके लिक्विड एसेट्स वगैरह हैं, आपको पता है कि एसेट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी मेजर लॉस, तो आप जाहिर है यू आर एबल टू रिड्यूस योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। देन हम बात करेंगे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में आप को पता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता क्या है। अब दो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। Asymmetric information वो होती है the case where all the parties to transaction or contract have the same information, be that little or a lot. उसे तो हम सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहेंगे। लेकिन जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होता है उसमें ये हो सकता है कि किसी को ज्यादा इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू अदर। अब देखिए हमने मार्केट एफिशिएंसी की भी जब बात की थी तो हमने यही कहा था कि मार्केट्स आर इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट। हम देखें, मैं आपको थोड़ा सा लिंक करके बता रही हूँ रिकॉल, ताकि साथ साथ हमारी जो प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो भी आपके साथ साथ चलते रहें, आपके माइंड में थोड़ा रिकॉल करने से रिफ्रेश हो जाएंगे। अब देखिए एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप उस केस में आपके पास तमाम पार्टीज के पास सिमिलर जो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके दे डोंट हैव अ सिमिलर इंफॉर्मेशन। देखिए अब इंफॉर्मेशन ही अगर पूरी नहीं है तो आप कैसे, आप देखिए आपकी क्लास में
10 या 15 स्टूडेंट्स हैं और हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा क्विज 1 या क्विज 2 है, लेकिन जब तक सबको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो या आपका सीआर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि सबको बताए, और अगर नहीं इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कोई मतलब कहीं आ रहा है कोई जा रहा है, तो देखिए आप उसका इफेक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा ना। सेम इसी तरह एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। उसमें 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे, आपका एडवर्स सिलेक्शन और आपके मोरल हैजर्ड्स। देखिए एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है दैट कैन टेक ऑन मैनी फॉर्म्स एंड क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, कि आपके पास एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा टाइप्स में और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था यू आर नॉट इन द पोजीशन टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। जब हमने स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी की बात की थी तो हमने वहां डिस्कस किया था इनसाइड इन्फॉर्मेशन। अब इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेना कोई बहुत ज्यादा इजी बात नहीं है। Here we will focus on 2 specific forms, that is adverse selection and moral hazards. Adverse selection को आपको as a name depicts that you are going to make a wrong selection. देखिए अब आपके पास अगर आता है कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ आवर डेली लाइफ। जैसे आपने प्री मेडिकल या आप एफएससी में लेते हो या इंजीनियरिंग लेते हो, तो आपको देखना है कि मेरा जो है इंटरेस्ट क्या है, मेरी एक्सपर्टीज क्या है और मेरे रिसोर्सेज क्या हैं। देखिए अगर आप मेडिकल लेते हो तो देन व्हाट आर इफ यू डोंट गेट एडमिशन इन द मेडिकल इंस्टीट्यूशन देन व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आप डिस्कस करोगे ना। ये तो नहीं होगा कि आप लोग आंखें बंद करके एक सब्जेक्ट में एडमिशन ले लोगे और देन आप सोचोगे। अब जैसे मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को भी देखा है कि आई डोंट नो कि वो अपनी फील्ड्स को इतना ज्यादा चेंज क्यों करते हैं। अगर आपने सोच लिया कि आई हैव टू मेक अ कैरियर इन द फाइनेंस, देन आप अपनी जो मेजर एरिया है वहां से क्विट ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि एमबीए फाइनेंस में, देन अगर फर्दर स्टडीज करेंगे तो एचआर की तरफ चले जाएंगे, तो दैट इज नॉट अ गुड सिलेक्शन। सेम इन द केस ऑफ एडवर्स सिलेक्शन। खैर ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी, हट के थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करने के लिए। अब हम देखते हैं कि एडवर्स सिलेक्शन होती क्या है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ कि आप 3 लोग हैं ए बी सी। जो सी है उससे 2 लोग बोरो करने के लिए आते हैं, ए भी उससे बोरो करना चाह रहा है और बी भी बोरो करना चाह रहा है। तो सी कैसे डिसीजन करेगा कि मैं किसको जो है वो पैसे दूं। वो क्या करेगा, देखिए वो दोनों को या तो ये एक कंडीशन तो ये कि वो दोनों को जानता हो, तो उसको पता होगा कि ए का क्या बिहेवियर है और बी का क्या बिहेवियर है। एक कंडीशन ये कि वो दोनों को नहीं जानता है। अब देखिए उन दोनों का बिहेवियर अगर वो जानता है तो उसे पता है कि जो ए है वो हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करता है और जो बी है वो उसकी गैमलिंग वगैरह। गैमलिंग में आपकी अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि आप या तो पूरी तरह लॉस कर लेते हो या पूरी तरह आप विन कर लेते हो। अब वहां पे अगर वो देखेगा तो उसकी रिस्की मतलब उसमें थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके लिए वो कैसे डिसीजन लेगा। अब इधर सी हैज टू lend his money to A or B, that is a major decision which C has to taken. देखिए अगर उस टाइम पे वो देखेगा, अगर वो डिसीजन ले लेगा देन वो कुछ नहीं कर सकेगा। तो एडवर्स सिलेक्शन इस तरह ही एक सिलेक्शन है, occurs when one party in a transaction has a better information than the other. कि इसमें ये भी हो सकता है कि जब एक पार्टी कि अब देखिए मैंने जब सी की एग्जांपल दी तो मैंने कहा ए और बी को, अब हो सकता है वो बी को थोड़ा ज्यादा जानता हो, ए को ना जानता हो। Irrespective of knowing that B invest in a gambling business, लेकिन क्योंकि वो B को जानता है तो उसकी कोशिश होगी कि मैं B को lend कर दूं। Before transaction occurs, वो देखें अब वहां पे इंफॉर्मेशन की बात आ गई कि उसको A के बारे में क्योंकि नहीं पता था, that's why he gave his money to B. Potential borrowers most likely to produce adverse outcomes are ones most likely to seek loan and be selected. कि देखिए आप जब पोटेंशियल बोरोवर्स वगैरह देखिए उनके लिए बहुत एडवर्स आउटकम्स होते हैं, वो किस तरह वो लोन कहाँ से लेंगे, ये सारी चीजें। देखिए अब लोन लेने के भी है कि आप देखिए जब लोन लेने के लिए आप जाते हैं तो आप देखें आपको डिफरेंट टाइप के आप देखिए अकाउंट्स का आपने देखा होगा, एचपीएल का सेविंग अकाउंट्स का कि महाना अकाउंट है, ये आपको इस तरह है। तो जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी प्रॉपरली, यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन दैट इज गुड फॉर यू। Moral hazards.
मॉरल हैजर्ड्स क्या होता है कि आफ्टर द ट्रांजैक्शन अकर्स, कि आप पहले कुछ भी नहीं करते, आपको लगता है ये दोनों ठीक है, आप उनको दे देते हो, लेकिन आप जो है ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको पता चलता है कि दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन. Moral hazard occurs when one party has an incentive to behave differently once an agreement is made between the parties. कि देखिए आपका एग्रीमेंट हो गया बिटवीन बायर एंड सेलर, और एक पार्टी जो है वो अपने, उसके पास एक ऐसा इंसेंटिव है कि वो अपने एग्रीमेंट से या अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करी. दैट इज द केस ऑफ द मॉरल हैजर्ड. हैजर्ड क्या है कि बोरोअर ने पैसे ले लिए, जैसे बी ले लिए, और वो इमोरल एक्टिविटीज में और वो पैसे वापस नहीं कर रहा है. लेकिन दोनों कंडीशन, चाहे वो एडवर्स सिलेक्शन हो या मॉरल हैजर्ड्स हो, बोथ आर वर्थ मेंशनिंग, बोथ शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड. अब अगर एडवर्स सिलेक्शन में एक और है कि आप जो है विद द हेल्प ऑफ सिग्नलिंग एंड स्क्रीनिंग, इसको हम फर्दर हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यू आर एबल टू मेक अ गुड सिलेक्शन. इनिशियल स्क्रीनिंग कर लें, आप सिग्नलिंग कर लें. अब स्क्रीनिंग किस तरह करते हैं कि आप देखें आपके जब टेस्ट वगैरह होते हैं, कोई जॉब वगैरह ऑफर होती है, आप पहले एक उसका इनिशियल टेस्ट लेते हैं, फिर आप इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, तो आप इस तरह इनिशियल स्क्रीनिंग कर लेते हैं. अब यहाँ पे एक और हम बात करेंगे एजेंसी थ्योरी की, कि the analysis of how asymmetric information problem affects behavior is known as agency theory. Agency theory is also known as principal agent relationship. देखिए एजेंसी थ्योरी क्या है, आप प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, एचआर में डिस्कस किया होगा. एजेंसी थ्योरी में क्या होता है कि आप एज ए एजेंट जो है वो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है. तो जब आपकी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है तो दैट हैज that badly affects agency theory. Now we are going to discuss that how adverse selection and moral hazards influence financial structures. That is a major topic. सबसे पहले आप देखें the lemon problem. लेमन्स प्रॉब्लम इन यूज्ड कार. बेसिकली लेमन्स किसे कहते हैं, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपके पास डिस्टिंग्विश करना है, यू हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड लेमन्स यूज्ड कार्स. कि देखिए आपने गुड कार्स देखनी है और बैड यूज्ड कार्स. लेमन्स वर्ड डिपिक्ट कर रहा है बैड के लिए, तो आप कैसे करेंगे कि देखिए जो गुड आपके रिजल्ट्स क्या होंगे कि गुड कार्स वॉन्ट बी सोल्ड, कि आप उसे सोल्ड नहीं करना चाहेंगे, एंड द यूज्ड कार्स मार्केट विल फंक्शन इनएफिशिएंटली. तो वहां पे देखिए अब दो कमोडिटीज है, आप गुड और बैड है. गुड कार आप सेल नहीं कर रहे हो, बैड कार की मार्केट इनएफिशिएंट है. तो हम कैसे वी आर एबल टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम विद द यूज्ड कार्स. देखिए जब आपको गुड और बैड के बारे में नहीं पता होता, देन यू आर गोइंग टू मेक एवरेज ऑफ गुड एंड बैड सिक्योरिटीज वैल्यू. अब इसी तरह हमने कल बात की थी कि जो गुड सिक्योरिटीज अंडर वैल्यूड एंड फर्म्स बाउंड इशू देम, एंड बैड सिक्योरिटीज ओवर वैल्यूड सो टू मैनी इशूड. जब हमने कल बात की थी अपनी मोमेंटम की और विनर लूजर इफेक्ट की, तो सेम इन द केस के गुड सिक्योरिटीज जो है वो क्योंकि गुड है, अब उन्हें आप सेल नहीं करना चाहते, वो अंडर वैल्यू हो जाएंगी, और जो बैड है क्योंकि मार्केट इनएफिशिएंट करी तो वो ओवर वैल्यूड हो जाएंगे और उनको आप सेल कर देंगे. अब एक और जो मेजर प्रॉब्लम आता है कि इन्वेस्टर्स डोंट वांट टू बाय बैड सिक्योरिटीज. जब अब बैड सिक्योरिटीज को तो कोई खरीदना ही चाह रहा, दैट डायरेक्टली हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन द मार्केट बिकॉज मार्केट कांट फंक्शन वेल. अगर तो आपकी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कम है, मतलब ज्यादा सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, तो फर्म्स आर इन द बेटर पोजिशन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लेमन प्रॉब्लम. Now we are going to discuss the tools to help solve adverse selection lemons problem. देखिए आपने बात की थी कि लेमन प्रॉब्लम का हमने कहा कि कैसे अब गुड सिक्योरिटीज सोल्ड नहीं हो रही और बैड सिक्योरिटीज जो हैं वो मार्केट को इनएफिशिएंट कर रही हैं, तो देन आप कैसे डिसीजन लेंगे, क्या वो टूल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन. कि सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सेल ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो. इसमें देखिए आप फ्री राइडर प्रॉब्लम इंटरफेयर्स विद द सोल्यूशन. क्या आप जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम. देन गवर्नमेंट रेगुलेशन टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन.
कि गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस कुछ ऐसी बनाई जाएं दैट आर गोइंग टू इंक्रीज द इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे एनुअल ऑडिट्स वगैरह होते हैं, तो एनुअल ऑडिट्स वगैरह में कुछ चीजें आप डिस्कस करते हैं कंपनीज के बारे में, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ताकि वो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस, इसमें आप देखिए कि लार्ज फर्म्स आर गोइंग टू मेक मोर यूज ऑफ डायरेक्ट फाइनेंसिंग इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग, कि आपकी जो लार्ज फर्म्स हैं वो उनकी ज्यादा प्रेफरेंस होती है डायरेक्ट फाइनेंसिंग की तरफ। तो आप देखिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन सॉल्व द एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम। कोलैटरल एंड नेटवर्थ, कोलेट्रल का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने अब यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्लेन फैक्ट 7, ये आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब नेटवर्थ किसे कहते हैं? नेटवर्थ बेसिकली कहते हैं, आपने देखा होगा आपकी इक्विटी और जो वर्किंग कैपिटल जिसे कहा जाता है, इक्विटी और डेट के दरमियान डिफरेंस कितना है। लेकिन जब आप कोलेट्रल तभी लिखवाएंगे ना, आपको पता होगा कि आपकी नेटवर्थ क्या है, व्हाट इज द वर्थ ऑफ योर बिजनेस। अब यहां पे एक एग्जांपल है एनरॉन इम्प्लोजन कि आप देखिए कि इस थोड़ा सा केस स्टडी है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि 2001 तक एनरॉन जो है वो एक सक्सेसफुल फर्म थी जो एनर्जी ट्रेडिंग में एंगेज थी और इट इज कंसीडर्ड टू द मोस्ट सक्सेसफुल फर्म। फिर क्या हुआ कि उसने बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स के थे वो हाइड कर दिए, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किए। देन वो एनरॉन ने क्या किया कि रेगुलरली अपनी जो रिकॉर्ड था वो SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ भी डिस्कस किया, तब भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। इवन के जो आपके ऑडिटर्स वगैरह थे, जो आपके ट्रस्टेड ऑडिटर्स थे, उन्होंने भी जो है उनके साथ भी उन्होंने प्रॉब्लम डिस्कस किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस एनरॉन जो है बेसिकली लेमन प्रॉब्लम, जैसे एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम कहेंगे, वो सफर कर रहा था। तो ये अब एक इसमें केस स्टडी थी, फिर कैसे जाके एनरॉन अपनी इंफॉर्मेशन कैसे दी। फिर वही बात है कि जो उसमें टूल्स थे कि उसको अपनी इंफॉर्मेशन को बताना पड़ा, उसने देखा कि वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग को देखा, फिर उसने अपनी नेटवर्थ को देखा, फिर उसने अपनी कोलैटरल्स को चेक किया। देन एनरॉन इज इन पोजिशन टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। नाउ वी डिस्कस दैट how moral hazard affects the choice between the debt and the equity contracts. अब debt and equity contracts क्या होते हैं? डेट किसे कहते हैं, इक्विटी किसे कहते हैं? डेट बेसिकली कहते हैं लोन को। डेट जो है वो जेनेरिकली इसके लिए वर्ड बॉन्ड यूज होता है। देखिए जब आप डेट करते हैं तो डेट में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। डेट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि कॉर्पोरेशंस जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। और इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि आप अपने शेयर्स, आप खुद से अपनी इक्विटी, से स्टॉक इक्विटी कहते हैं, उससे करें। अब मॉरल हैजर्ड्स किस तरह आपको एनेबल करता है कि इधर यू हैव टू गो फॉर द डेट कॉन्ट्रैक्ट और द इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, हम इसमें प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को भी डिस्कस करें। नंबर 1, रिजल्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप बाय स्टॉक होल्डर्स फ्रॉम कंट्रोल बाय मैनेजर्स। सेकंड, मैनेजर्स एक्ट इन ओन रादर देन स्टॉक होल्डर्स इंटरेस्ट। ये जहां पे एजेंसी प्रॉब्लम देखिए, मैनेजर्स एक्ट इन ओन रादर देन स्टॉक होल्डर्स इंटरेस्ट। इसकी एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूं कि देखिए आप एक साइलेंट पार्टनर बन जाते हैं आइसक्रीम स्टोर में। यू आर गोइंग टू प्रोवाइड 90% ऑफ द इक्विटी, दैट इज $90। जो उसका ओनर है वो $1,000 पे कर रहा है। टोटल आपके पास कितनी होगी? $10,000। 10,000 की इन्वेस्टमेंट है जिसमें से 9,000 आप पे कर रहे हो। यू आर गोइंग टू बिकम द साइलेंट पार्टनर एंड स्टीव जो उसका एक्चुअल पार्टनर है वो पे कर रहा है 1,000। और स्टीव बहुत ज्यादा काम करता है और स्टोर की जो अर्निंग है 50,000 इन्वेस्टमेंट जो है स्टोर विल मेक 50,000 आफ्टर एक्सपेंसेस। देखें उसमें आपने क्या किया कि 9,000 आपने आपकी जो आपकी कंट्रीब्यूशन थी इन्वेस्टमेंट की वो 90% थी और 1,000 कंट्रीब्यूशन थी स्टीव की जो 10% थी। टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 10,000 की। अब आप जो है सिर्फ साइलेंट पार्टनर हो। आपने सुना होगा स्लीपिंग पार्टनर जिसे कहा जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट तो दे रहे हो बट यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी रोल इन द मैनेजमेंट, मतलब आप मैनेजमेंट में नहीं देख रहे, आपको नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम्स है, बस आप इन्वेस्टमेंट दे रहे हो। अब टोटल जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो 50,000 हुआ है आफ्टर मेकिंग एक्सपेंसेस। तो अब देखिए अगर आपकी कैपिटल की रेशियो देखी जाए तो यू आर गोइंग टू इंटाइटल 45,000 ऑफ इट।
और स्टीव को क्या मिलेगा, सिर्फ 5000। लेकिन देखिए अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए आप अब स्टीव ने देखिए मैनेजरियली भी तो कुछ काम किया है ना, वो अपनी एफर्ट्स लगा रहा है और आप सिर्फ अपना प्रॉफिट लगा रहे हो। तो आप क्या लगता है कि स्टीव को प्रॉपर इंसेंटिव दिए गए हैं? नहीं। देखिए ये मॉरल हैजर्ड था ना जो आपने डेट और इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट, अब उसने इतना ज्यादा डेट पे, स्टीव का बिजनेस अपना था लेकिन उसने डेट को इतना ज्यादा अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया कि 90% उसका बिजनेस डेट पे चल रहा है। जो प्रॉफिट भी वो हो रहा है, वो काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, और जो अर्न कर रहा है उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए आप 90%, अब टोटल इन्वेस्टमेंट में 10,000 में से 9,000 वो बोरो कर रहा है, दैट इज अ डेट कॉन्ट्रैक्ट, और 1,000 दैट इज अ इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट। अब जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो 90% प्रॉफिट भी दे देगा, तो दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन, दैट अफेक्ट्स द चॉइस बिटवीन द डेट एंड द इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, टूल्स टू हेल्प सॉल्व द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। इस स्लाइड में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट। प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, यू हैव टू डू अ वेरी क्लोज मॉनिटरिंग। Government regulation to increase information, financial intermediation, venture capital, debt contracts। कि वो 4 फैक्टर्स हैं कि आप प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, आप देखें कि आपकी इंफॉर्मेशन किस तरह, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, डेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। आप डेट कॉन्ट्रैक्ट करते हुए देखें कि आप उसकी रेशियो एंड चेक कर लें। ये नहीं कि आप मोर देन 90% अपना डेट पे दे रहे हैं, जो भी हमने पीछे एक केस स्टडी देखी है। So these 4 points enable you to solve the principal agent problem। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाई डेट इज यूज्ड मोर देन इक्विटी। जब हमने डेट के बारे में पढ़ा था, हमने फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स में, उसमें हमने डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट को डिस्कस किया था। व्हाइल डिस्कसिंग द कंसेप्ट हमने कहा था कि डेट मार्केट के कुछ बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट रिटेंशन, लिवरेज, किस तरह। देखिए जब आप डेट पे जा रहे होते हैं तो आपको एक तो डिविडेंड नहीं पे करना पड़ता अपने शेयर होल्डर्स को, इसलिए कुछ लोगों की कोशिश होती है कि डेट को ज्यादा यूज करें। देन क्या होता है कि आपकी जो जाहिर है आपके टैक्सेस वगैरह, क्योंकि आप मेजर पार्ट ऑफ डेट पे काम कर रहे हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, प्रॉफिट आप रिटेन कर लेते हो। तो दीज आर द मेजर बेनिफिट्स, दैट्स व्हाई फर्म्स आर गोइंग टू प्रेफर डेट मोर देन इक्विटी। अब देखिए उसके अलावा आप देख लें कि एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं, बट डेट इज स्टिल कंसीडर्ड एज अ मॉरल हैजर्ड। इन फैक्ट डेट में क्रिएट एन इंसेंटिव टू टेक ऑन वेरी रिस्की प्रोजेक्ट। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है डेट के अंदर कि बोरर हैव टू पे द फिक्स्ड अमाउंट दैट इज इंटरेस्ट। अब देखिए आप अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी फर्म से $100 लिए हैं, अब देखिए किसी फर्म ने लिए हैं और उसको $100 इंटरेस्ट पे करना है, उसके पास सिर्फ $90 सिर्फ रह गए हैं, तो उसके पास क्या, अगर वो बैंकरप्ट हुई तो फर्म के पास तो कुछ भी लूज करने के लिए नहीं है। तो अब देखिए डेट में आपको ये होता है कि आप रिस्की प्रोजेक्ट्स में भी चले जाओ, तो आप जैसे कॉर्पोरेशंस वगैरह में है, आप रिस्की प्रोजेक्ट्स में चले जाते हो आप, क्योंकि आपने डेट पे आपकी अपनी इक्विटी नहीं होती है। वो कौन से टूल्स हैं that are going to help you to solve the moral hazard in debt contracts? First of all, you are going to always going to monitor the net worth and the collateral. Collateral means कि आप secured debts थे, ठीक है, आपको पता है कि अगर borrower नहीं पे कर रहा तो आपका डेट secured है। नेटवर्थ, आप वर्किंग कैपिटल चेक करें, आपकी डेट कितना, इक्विटी कितना है, क्योंकि फर्म्स के लिए जरूरी है कि उसका जब कैपिटल स्ट्रक्चर बने तो वो ये देखे कि कितना वो डेट से अपनी फाइनेंसिंग कर रहा है और कितनी इक्विटी से कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस, कि वो रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस उसकी मॉनिटर करे, उसको एनफोर्स करे। इसमें 4 एग्जांपल्स हैं, डिस्करेज अनडिजायरेबल बिहेवियर, एनकरेज डिजायरेबल बिहेवियर, कीप कोलेट्रल वैल्यूएबल, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। वही सिंपल पॉइंट्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब किस तरह आप मॉनिटर कर सकते हो, उसमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस जो हैं दैट कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन मॉनिटरिंग।
ये एक टेबल मैं आपके साथ शो करूंगी जो ब्रीफली आपको समराइज करेगा एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम एंड टूल्स टू सॉल्व देम। मैंने इसको बिल्कुल एक ऐसा टेबल बना दिया ताकि आपको पहले भी मैं आपको टेबल्स और ग्राफ्स की हेल्प से बताती थी ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम कौन सा है? एडवर्स सिलेक्शन। आप कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? यू आर गोइंग टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम बाय प्राइवेट प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, कोलेट्रल एंड नेटवर्थ, वही जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉरल हैजर्ड्स इन इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट रेगुलेशन टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, डेट कॉन्ट्रैक्ट्स, मॉरल हैजर्ड्स इन डेट कॉन्ट्रैक्ट, कोलेट्रल एंड नेटवर्थ, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस। देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स मिल रहे होंगे, फैक्ट्स 1 2 3, ये वो 7-8 फैक्ट्स हैं जो हमने सबसे पहले डिस्कस किए थे। जब हमने कहा था कि स्टॉक्स आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। नंबर 2 ये था कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस। नंबर 3 इनडायरेक्ट फाइनेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डायरेक्ट फाइनेंस। Number 4, banks are the most important source of external funds. Number 5, the financial system is heavily regulated. 6, only large, well-established firms have access to market securities. Number 7, collateral is prevalent in debt contracts. 8, debt contracts have numerous restrictive covenants. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वही टूल्स जो है आपको मॉरल हैजर्ड्स और एडवर्स सिलेक्शन के प्रॉब्लम से रिजॉल्व करेंगे। Sometimes financial repression leads to the low growth. इसमें कुछ 5 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले पुअर लीगल सिस्टम, वीक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट डायरेक्ट क्रेडिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नेशनलाइज्ड, इनएडिक्वेट गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ये वो 5 जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी रेगुलेशंस नहीं है, वीक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैडली इफेक्ट करती है। आप फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जा सकते हो। फाइनेंशियल क्राइसिस बेसिकली होता क्या है? मेजर डिसरप्शंस इन फाइनेंशियल मार्केट्स, then end result of most financial crisis in the inability of the markets to channel funds from the savers to productive investment opportunities. Because the finance markets जो है वो efficiently काम ही नहीं करी, तो then why transfer of funds should take place? फिर आप देखें चाइना, इज चाइना काउंटर एग्जाम्पल। आप चाइना की एग्जाम्पल को देखें, इवन इट्स बूमिंग इकोनॉमी, चाइना's फाइनेंशियल डेवलपमेंट इज स्टिल इन अर्ली स्टेज। उसकी पर कैपिटा इनकम इज अराउंड अबाउट $5,000 बट सेविंग्स आर अराउंड 40%, अलाउइंग चाइना टू बिल्ड अप कैपिटल स्टॉक। इसी तरह ये डिफरेंट इकोनॉमीज को डिस्कस किया गया है कि रशिया का क्या है। रशिया ने 1950s में उसकी भी बिल्कुल एज सिमिलर इकोनॉमी एज दैट ऑफ द चाइना। अब देखिए चाइना को ग्रोथ करने के लिए जरूरी है इन ऑर्डर टू ग्रो चाइनीज इकोनॉमी, चाइना शुड एलोकेट कैपिटल मोर एफिशिएंटली। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। हमने कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट देखा था कि हमने कहा था कि देखिए 2 पार्टीज हैं लेकिन उनके इंटरेस्ट जो है मैच नहीं करे। आपको याद होगा कि हमने एक एग्जांपल जब शेयर की थी कार्ल की, कारपेंटर की, हमने कहा था कि आपके पास 1000 रुपीज हैं और उसको भी 1000 चाहिए, वहां पे आपके इंटरेस्ट मैच कर रहे थे। लेकिन जब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं तो दैट आल्सो अफेक्ट्स द फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट जो है बेसिकली इज अ टाइप ऑफ द मॉरल हैजर्ड दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन हैज मल्टीपल इंटरेस्ट्स एंड सर्विंग वन इंटरेस्ट इज डिटरमिनेंटल टू अदर। क्या आपके इंटरेस्ट जो है वो मल्टीपल इंटरेस्ट है, आपके कुछ और हैं और उसके कुछ और हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स किस तरह वो कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक्स में बोथ रिसर्च कंपनीज विद पब्लिक सिक्योरिटीज एज वेल एज अंडरराइट सिक्योरिटीज फॉर कंपनीज फॉर द सेल टू पब्लिक। Research is expected to be unbiased and accurate, reflecting the facts about the firm. It is used by the public to form investment choices. Underwriters will have an easier time if research is positive. Investment bank किस तरह काम करेगा? वो act करेगा as a researcher and underwriter of securities.
आप कंसल्टेंसी दें, आप ऑडिटर्स को कहें कि वो आपकी एसेट्स एंड बुक्स ऑफ फर्म को देखें ताकि आपको पता चले कि क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। कंसल्टेंट्स को फीडबैक की जाती है ताकि वो फर्म्स को मैनेजरियली स्ट्रेटेजिकली एंड ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स में हेल्प करे। ऑडिटर जो है वो आपका कैन एक्ट एज अ ऑडिटर एज वेल एज कंसल्टेंट फॉर द फर्म क्लियरली इज नॉट ऑब्जेक्टिव। देखिए वो दोनों काम कर सकता है। इसमें दो मिनी केसेस हैं, वो आप लोग देख लें, मूडीज एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर का। ये आप लोग देख लें, ये इसी चीज को डिपेक्ट कर रहा है कि कैसे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट थे, कैसे उन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उनके दरमियान में रोल प्ले किया और कैसे उन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व किया। ये वही प्रिंसिपल एजेंट जो प्रॉब्लम है। अब देखिए इसमें 2 केसेस में आपको मैं रेमेडी कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि एक तो थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैंने ये कहा है कि आप मैंने केसेस खुद देख लें। हम चलते हैं इसमें कौन कौन से, साराविन्स-ऑक्सले एक्ट ऑफ 2002, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। साराविन्स-ऑक्सले एक्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह के लिए है। अब उसमें क्या है कि आप अपने इस एक्ट में कुछ ऐसी चीजें डालें जो आपके फर्म्स को या फाइनेंशियल मार्केट्स इंस्टीट्यूशंस को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकें। उसमें क्या चीजें आ सकती हैं? एनहांस क्रिमिनल चार्जेस, improve the quality of the financial statement and boards, increase the Security Exchange Commission budgets for supervisory activities, then global legal settlement of 2002 कि required investment banks to server links between research and underwriting, कि investment banks जो हैं that have to take part between the researcher and the underwriter. Now I am going to briefly give you the lecture of today. हम एंड लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एज यूजुअल हम अपने लेक्चर की समरी को डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक था इतना ज़्यादा आप देखें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हमने की थी। हमने सबसे पहले कहा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्यों हैं, फिर हमने इसमें 8 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। बेसिक फैक्ट्स अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड, हमने बेसिक 8 फैक्टर्स देखे थे, वो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिवाइज कराए। मुझे नहीं, मैं फिर भी आपको दोबारा जाके प्रीवियस स्लाइड पे एक दफा वो रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको, क्योंकि वो बेसिक 8 फैक्टर्स हैं जो आपके मॉरल हैजर्ड्स को, एडवर्स सिलेक्शन के कंसेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं। नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, इट इज नॉट नेसेसरी दैट स्टॉक्स आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। देन वी डिस्कस दैट मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस। इनडायरेक्ट फाइनेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डायरेक्ट फाइनेंस. Banks are the most important source of external funds. The financial system is heavily regulated. Only large, well-established firms have access to securities market. Collateral is prevalent in debt contracts. Debt contracts have numerous restrictive covenants. तब हमने देखा था कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती क्या है। फिर हमने एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड्स की बात की थी। एडवर्स सिलेक्शन को डिस्कस करते हुए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि दैट अकर्स बिफोर द ट्रांजैक्शन अकर्स और मॉरल हैजर्ड आफ्टर द ट्रांजैक्शन अकर्स। फिर हमने देखा था कि आपको डेट और इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे ये डिसीजन लेना चाहिए कि इधर यू हैव टू गो फॉर द डेट कॉन्ट्रैक्ट और द इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस किया था। हमने देखा कि सारबेन्स-ऑक्सले एक्ट्स किस तरह काम कर रहे हैं, ग्लोबल लीगल सेटलमेंट ऑफ 2002। यानी बेसिकली आज का जो चैप्टर था वो था कि वी रिव्यूड 8 बेसिक फैक्टर्स कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। देन वी एग्जामिन्ड हाउ ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कैन हिंडर कैपिटल फ्लो एंड द रोल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्ले इन रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। वो मैंने आपको उसमें डिस्कस किया था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सपर्टीज, लिक्विडिटी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल में अगर हम एग्जांपल देखें तो म्यूचुअल फंड को डिस्कस किया था। देन एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की बात की थी, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजर्ड। वी डिफाइंड एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अलोंग विद द 2 कैटेगरीज, दैट इज एडवर्स सिलेक्शन एंड द मॉरल हैजर्ड्स। देन वी डिस्कस्ड द लेमन प्रॉब्लम, बैड कार्स एंड यूज्ड कार्स. We discussed how adverse selection affects the flow of capital and tools to reduce the problem. Then we discussed that how moral hazards affects the choice between the debt and the equity contracts. यहाँ पे मैंने एक आपके एग्जांपल शेयर की थी कि एक स्लीपिंग पार्टनर है और एक वर्किंग पार्टनर है और डेट इतना ज़्यादा ले लिया है कि उसको आखिर में कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, तो यू हैव टू बी विजिलेंट while making decision with the debt and the equity contract. Then we reviewed the principal agent problem and how moral hazard influences the use of more debt than equity. After that, how moral hazard influences financial structure and debt markets. We discussed how moral hazard and debt may lead to increased risk taking and tools to reduce this problem.
In the last, we discussed the conflicts of interests. This is all about the today's lecture.